सो हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैप कलेक्शन इन जावा। जैसे आपने कलेक्शन सीखा और जितना इम्पोर्टेंट कलेक्शन है उतना ही इम्पोर्टेंट मैप भी है। अगर आपने कलेक्शन पढ़ लिया और मैप नहीं पढ़ा तब भी दिक्कत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। सो कलेक्शन का डिफिनेशन क्या था कि कलेक्शन इज ए यूज टू स्टोर व्हाट हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, डुप्लीकेट एंड यूनिक टाइप ऑफ एलिमेंट like that you can store in map also. So map is used to store the data which is form of key value pair, but in collection it not required key. You can just put your object inside the collection. Whatever the collection you are using implemented classes, like we have implemented classes like what is the implement array list. So if you use array list, here you can store a string type of data, right? So it's not required to give any key, and you can create just like list equal to new array list, and you can give like that. So like that you can create array list in Java. So that is the collection. But now we are going to learn map. So first of all I am going to tell you what is the map. So map is basically like if you want to store data, if you want to store, if we can say you or we, like if we want to store object or data as a key value pair, that is called map. That's it. If we want to store data as a key value pair, that is called map. For example, in array list we are storing data, like I want to store data inside this list, array list. What I will do, I will add list dot add, and I will just here pass one object as a string, so like pk. So this pk will go and store inside this array list. But if we want to store data, like a pk is stored like that, one index of pk, two index of ck. So if you want to store data like that, like pairing as a key, so one is nothing but it's a key, two is nothing but it's a key, and pk is nothing but it's a value. So like that data array is not able to store, right? But if you want to store like that data, like key value pair, you have a key, you have a value, you have a key, you have a value, then you have to take support of map. For example, so definition should be clear. Like if you want to store a data as a key value pair, I will mention this as a key value pair. This one is a key, comma, this is a value pair, that is called map. So like that, if you want to store data in array list, you created array list, that's fine. But if you want to store data in map, you have to create map. So we are going to learn how we can create a map.
So you can create map like whatever the implemented classes having a map, like map implemented classes. I will show you first. Okay. So I'm going to the our website, and first of all I will say like collection hierarchy. So in collection hierarchy, if I see here, okay, I will open something else, some other page image. Inside this image I'll pick this one. Okay, otherwise I already have in my local, I already downloaded, so I will show you. This is the map hierarchy, and where is the collection hierarchy? This is the collection hierarchy. So collection hierarchy having some implemented classes like collection, and collection having a list, queue or set. These are the interface. And list having array list, linked list, vector, stack. Queue having a priority queue, array dequeue. Set having a hash set, link hash set or tree set. So same thing, we have a map hierarchy. So now I'm going to here and I'm going to open map hierarchy. So in map hierarchy having a like that structures, like this is the map, okay, and this map, okay, first I will remove here, so you can see this is the interface, whatever the having a, which color, this one, yellow color. The yellow color is nothing but interface. The light blue color is nothing but abstract classes, and the what is this color? Green color is nothing but implemented classes. So we are going to learn about those implemented classes today. So map having implemented classes like hash table, these are the popular classes: hash table, hash map, identity hash map, linked hash map. And if you go to the more, then you can see tree map, weak hash map, enum map, concurrent hash map, and current escape list map. So these are the overall hierarchy of the map. So basically in our company in real time we are using tree map. What we are using? Tree map, link hash map, hash table. And if you go to the advanced concept, then definitely you have to know about concurrent hash map. Okay. Nowadays, every interviewer are asking what is the concurrent hash map. So you have to give the proper definition, like what is the use of concurrent hash map. Then he will select you, otherwise he will reject you. So you have to aware about all those implemented map. Okay, like hash table hash map, identity hash map, link hash map, weak hash map, enum map, tree map, concurrent hash map, concurrent escape list map. And those implemented classes, you can create a object and you can store your object inside this as a key value pair, because these are the map. Now I am going to show you how you can create a hash map object. Okay, how you can create a hash map and you can store the data inside the hash map as a key value pair. Okay, so simply if you see here, our definition is like what is map. If someone told you what is map, you just want to say, if you want to store the data as a key value pair, that is called a map. Okay, fine. But what about how can I use it? That is also very important now. So if you want to use it, okay, so you can create a implemented classes object. Like I will take hash map, and inside the hash map you have to give key value pair. Key value pair is like
by default, if you not give this one, if you not give like that, and you can create like map equal to new has map, then internally it will create object and object type of key value pair, like array list. Array list like collection implemented classes. If you not give this type safe, if you not give this type safe, if you remove it, by default this array list will store object as a data. Got it? But if you give the type safe, it will store only a string type of data. So here, if you not give anything type safe, then by default it will store a data like object, object comma object. So first one is a key, this one is a key, and this one is a value, and both are object. But in it, sometimes we no need to take object. You have to store your own data. For example, I want to store here a student ID. So ID is nothing but integer. Okay? ID is nothing but integer. So I will take here integer. And value is nothing but I want to store as a student. Okay? So here I can store a student object. So this hash map is only able to take ID as a integer and value as a student class object, right? So like that we can create your hash map and you can store the data inside this. Okay, I will give you one more example. For example, you want to store some data as a key value pair. So you can take here ID as a string and value as a integer also. Okay, so you can take ID as a string, float, boolean, double, whatever. You can take here class also, no issue. Here you can also give anything, whatever you can give here as a key. Same like that you can give here also anything, no issue. You can make something key and you can make something yeah. So for example, right now I want to make a student as a key, student as a key and value as a integer. That is also fine. But in rare, generally we are storing here integer as a key and value as a something object, like a string type of the object. So here if you want to store a string, you have to add, we have a add method. What we have? Add method to add the data in array list. But in map we have a one method called put. Yes. What is the method? Put. So what you can do, we have a map reference. So you have to call here map dot put. Put means डालना, रखना. So map dot put data bracket open करेंगे and just you have to give whatever the value you have specified. So this is integer, so I will give 101, and this is a string, so I will give one name, a string type like Prince. So if you want to store data like that, key value pair, then you can to go with map. Understood? Any doubt? So if you want to go with the collection implemented class, so you can store only inside this object, one object. But if you want to store the data as a key value pair, you can go with the string map. We can go with the
map hierarchy. Map hierarchy implemented classes. Map hierarchy implemented classes having, I will, the important implemented 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 classes of map is, what is the important classes? Tree map, hash map, link hash map, hash table, link hash map. link Hash map. So those are the popular. I will not mention everything because I already show you this hierarchy. So if you want to see this hierarchy, you can note down it, and you have to create all those objects, okay, and you have to insert the data inside this, and you have to do the practice like how they are storing the data, okay, and make sure in interview you have to know about what is the difference between tree map and hash map, what is the difference between link hash map and hash map, what is the difference between hash table and tree map. So like that comparison we have to know, and also you have to aware about like which implemented classes I have to take when, कब और कहाँ कौन सा implemented classes लेंगे, एक कंफर्म होना चाहिए. कब कंफर्म होगा? जब आप ये जानोगे कि सभी implemented classes में एक दूसरे से डिफरेंशिएट क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमने जाना यहाँ पे कलेक्शन implemented classes में कि हमारे पास 3 है, लिस्ट, क्वी, सेट. इन तीनों में डिफरेंट है, तो मुझे कब और कहाँ किसको लेना है ये डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए. मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में लेना है, तो हम जाएंगे सेट के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस के अंदर, और सेट में भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेड हैं, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट. इनमें से किसको लेंगे? इनमें से किसी को लेंगे, तो इसके लिए आपको हैश सेट में, लिंक हैश सेट में और ट्री सेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना. कोई भी कहीं भी ले लिए तो कोई क्या कुछ होगा? नहीं होगा. ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा. भला कि आपका काम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपर कोड कवरेज नहीं होगा, आपका प्रॉपर कोडिंग स्टाइल नहीं होगा. तो मेक श्योर कि आपको सारे इम्प्लीमेंटेड क्लासेस का जो भी क्लासेस हैं उनके एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट. सो यू हैव टू से storing the element in array list in middle of the list, that is very difficult task. Delete the element of the array list in the middle of the array list, that is very difficult. It will take some more time to do it, but if you go with the linked list, those tasks is very easy, because you just have to link the node, one node to another node, so it is very easily it will do. So if you know, like in your application you have to just modify and delete the object in middle of the data, then you have to go with the linked list implemented classes. But if you know कि I want to fetch and update the data, then you can go with the array list. I hope it will take some time to understand what is the exactly difference between them, but it will take time, but you can understand later. It will give you maturity one by one. Okay, so same thing
In map also we have so many options. Anyone you can take, it will work for you. But which one I have to take in which situation, that is more important. Hmm. Okay. Okay. So you have to, like, the most popular question is in map, what is the difference between tree map and hash map? Interviewer will ask you. It's very simple. And interviewer will ask you, like, what is the difference between link hash map and hash map? What is the difference between hash map and hash table? If you give some valid point answer, like when you take hash table, when you take hash map, then he will satisfy with you, like you know aware about it and you know about this. Okay. Hmm. So these are the basic introductions of map I have given to you, and that is enough for you to understand, like, what is the map. So it's a very simple. If you want to store data as a key value pair, that is called map. You can create a object like map in like that, hash map, first key separated comma with value, map reference. You have to create with the new keyboard and hash map, and you have to give this generic, don't forget it. Okay. And you can create the map. If you want to put data inside this map, you have to call map.put method. Okay. You have a method called put method. In collection, array list having a add method, so don't confuse. Put. Okay. In map having a put, but in array list having a add method. I will Both do. are same. Yeah, both are same. Add is used to add the data in array list, and put is used to add the data in map. Both are same. Add method is taking the one parameter to add the data, but put method is taking String and two parameter, String. key and value, key and value. Now I am going to create one basic example, okay, basic problem, and I will teach you how you can put the data inside the map and how you can retrieve it. Okay, let's start. So I have created these classes for array list previously. Okay, this is the collection project. Inside this collection project I will create one more, what is called class, and com dot basic dot map. Okay, and I will here demo map, and in demo map I'm going to create one main method. Simple. I will give you example like how you can use this. Okay, so this is the main methods. Inside this method I will create one map. So how can I create map? I will create one implemented classes like hash set, hash map. Okay, hash map you have to create like that. I want to take key as a integer. You can't give here int, make sure. If you give int here and a string here, it will give error. Like new hash map. So this is the hash map. Okay, so here if you give integer value, it's not a object type, it's a primitive data type. So inside the collection you don't want to give primitive value data. You have to give object type. What is the wrapper class? Wrapper class. Yes, integer is a wrapper classes. INTE. Integer is a wrapper classes. We have 8 wrapper classes. Okay. No, tell me. No issue. Hash map integer object class. Yes.
Not primitive data type. No. Then array list are same as. No. Because capital letter is mandatory. नहीं तो error आ जाता है. You can't, that's what I'm saying. I'm saying if you give int, it will not support. It will give error because collection map will not support the primitive type data. Collection, collection. not map and map and collection. ये जो कलेक्शन है ना, ये इन प्रिमिटिव वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है. अंडरस्टूड? ये सिर्फ सपोर्ट करता है किस टाइप का? वेपर क्लास. क्लासेस टाइप के ऑब्जेक्ट को, जो कि क्लास हो. तो यहाँ पे क्या है? इंटीजर एक क्या है? क्लास है जिसको सपोर्ट कर दिया. अब क्या करेंगे हम? सिंपल हैश मैप को इंपोर्ट कर लेंगे. java.util.हैश मैप स्टोर हो गया. और यहाँ पे अगर हम इंट लिखते हैं तो इसलिए एरर दे रहा था. यहाँ पे प्रॉपर लिखता है सिंटेक्स एरर, insert dimension to the complete type argument, so it will not support primitive type of the value inside this map or collection. Okay. Entire the collection it can't support. Okay, so this is the hash map. So I am able to create hash map. Syntax is whatever the implemented class you have, here you have to give the key. Key is anything. Key is anything, like you can give integer, float, double, boolean, string, anything. Key. You can give here a string value. You can give value as a string, object, student, anything. And you can just give the reference of this hash map and just create with the new hash map. Okay, it will create it. Now I want to put some data. Has not put. So I will say map dot put. We have a one method called Add put. method. Not add method, put Add method. Put add. Add means collection. Put means map. Means not means. Okay. Array implemented whatever the collection implemented classes have, Add method. हाँ उसके लिए add method है. और मैप के क्लासेस के जो भी इम्प्लीमेंट क्लासेस Put है method. उसके लिए पुट मेथड है. क्या करने के लिए? डेटा को डालने के लिए. Okay. ओके. और यहाँ पे इसके पास जो पुट मेथड है 1, 2, 3 मेथड है. ये कैसे मेथड है? ओवरलोडेड मेथड है. क्या है? ओवरलोडेड मेथड है क्योंकि सेम नाम के मेथड हैं और डिफरेंट पैरामीटर है. तो पुट मेथड ले लेते हैं जिसके पास की और वैल्यू होगा. की में हम डाल देते हैं 1 और वैल्यू में डाल देते हैं हम प्रिंस. अंडरस्टूड? एक और मुझे डेटा डालना है तो मैप डॉट पुट. एक और डालना है तो मैं क्या करूँगा? मैप डॉट पुट. वही मेथड. की एज ए 2 एंड वैल्यू एज ए व्हाट? दीपक. ओके. साहिल, अनिल, and here I will give 3, 4. Don't forget semicolon. Okay. So I have put the data inside this map. Okay. How many data I have put it? 4 data. Now I want to print this data. What I will do? I will do s out. Simple. And I will say map. If I print this map, it's showing some data. If you see, it's saying 1 equal to Prince, 2 equal to Deepak, 3 equal to Sahil, 4 equal to Anil. So 1 is key and Prince is value. So key equal to value, key equal to value, key equal to value. Like that data it will print. That is called Map. map.
Okay. So you understood like how to use map. कॉमा की जगह इक्वल टू कैसे आ रहा है? It will internally display like equal. ओके ये मेथड है पुट. पुट क्या है? Method. मेथड है. 1 कोमा की वैल्यू की सेपरेटेड कोमा वैल्यू. यहाँ पे ये मेथड है मैप डॉट पुट. दिख रहा है यहाँ पे पुट के अंदर इंटीजर की कोमा स्ट्रिंग वैल्यू 2 पैरामीटर पास करना है. दिख रहा है? तो उसको हम यूज कर रहे हैं. तो की एज ए 5 और वैल्यू एज ए आकाश. कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं, सब चलेगा. अगर इसको सेव करके रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा. क्या आएगा? 1 इक्वल टू प्रिंस, 2 इक्वल टू दीपक कोमा सेपरेटेड, 3 इक्वल टू साहिल, 4 इक्वल टू अनिल, 5 इक्वल टू आकाश, जो भी हम लिखे थे. ओके. सो इंटरनली क्या करता है कि इक्वल टू वैल्यू बना करके हमको प्रिंट कर देता है. अब मान लो मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना है. ये तो नॉर्मली हमने सीधे मैप को प्रिंट करा दिया तो इससे मुझे वैल्यू दिख गया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसे प्रिंट हो कि वैल्यू ऐसे प्रिंट हो लाइन बाई लाइन. तब कैसे होगा? तब मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप का यूज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? लूप का यूज करना पड़ेगा. अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेकर के डालना हो तो स्कैनर प्लस फिर से मुझे लूप लेना पड़ेगा. ठीक है. और लूप में हम क्या करेंगे देखो बताते हैं. इसको रिमूव किए. सबसे पहले ले आएंगे स्कैनर क्लास. स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ओके. स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए. ओके. अब मुझे क्या करना है? एक लूप चलाना है. जितना भी वैल्यू मुझे लेना है यूजर से. सो मान लो इंट आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5. मुझे 5 वैल्यू लेना है. चाहे मान लो मुझे 3 वैल्यू लेना है. 3 एंड आई प्लस प्लस 3 बार लूप चलेगा. करेक्ट. कितना बार लूप चलेगा? 3 बार लूप चलेगा. 3 बार हम पूछेंगे क्या? इंटर वैल्यू. क्या बोलेंगे आप? इंटर वैल्यू. तो क्या देगा मुझे? वैल्यू देगा. चाहे बोल देंगे इंटर की. क्या बोल देंगे? की. और की का जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा तो की हमको क्या लेना है? इंटीजर लेना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इंटीजर छूट गया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंट लिख देंगे. इंट की लिख लेंगे. की इक्वल टू एक वेरिएबल बना लेंगे खुद का अपना. और एस डॉट नेक्स्ट इंट से क्या करेंगे? उसका की ले लेंगे. फिर से एक और आउटपुट देंगे उसको. बोलेंगे इंटर वैल्यू. क्या बोलेंगे उससे? इंटर वैल्यू. जो भी मुझे वैल्यू देगा, वैल्यू किस टाइप का देगा मुझे? स्ट्रिंग टाइप का देगा. तो मैं क्या करूँगा उससे? स्ट्रिंग वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लिया. 80 डॉट नेक्स्ट डाल दिया. उससे वैल्यू आ गया. अब मैं क्या करूँगा? इस की और वैल्यू को कहाँ डाल दूँगा? मैप में. सो मैप डॉट पुट की एंड वैल्यू में वैल्यू. जो भी मुझे की वैल्यू आया डाल दिया. कंप्यूट हो गया. पुट होना चाहिए. ओके. मैंने डाल दिया. अब ऐसे करके क्या करेंगे? हम 3 ऑब्जेक्ट ले लेंगे. ले लिए. इनको डिस्प्ले करना है तो कर लेंगे एक साथ. पहले अभी एस आउट मैप करके देखते हैं. सिंपल. रन किए. आया यहाँ पे कंसोल. बोला इंटर की मैंने दिया 1. बोला इंटर वैल्यू मैंने दे दिया प्रिंस. बोला इंटर की मैंने 5 डाल दिया. बोला वैल्यू मैंने प्रीति डाल दिया. बोला इंटर की 5 डाल दिया. वैल्यू पूछा तो दीपक डाल दिया. हमको बता दिया कि आपने क्या डाला?
1 इक्वल टू प्रिंस, 5 इक्वल टू दीपक। लेकिन तीसरा वैल्यू कहाँ गया? प्रिंस, प्रीति और दीपक का वैल्यू, दीपक कहाँ? का है, प्रीति का मिसिंग है, बीच का। प्रीति का मिसिंग है, ओके। क्योंकि इसका की कितना है? 5 है, इसका की कितना है? 5 है। तो ये डुप्लीकेट। करता क्या है कि कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता मैप के अंदर। ओके। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हम। मैप डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट की। यस, नोट दैट मैप doesn't support key as duplicate, but if you give duplicate key, then existing key value will remove. Okay, yes, see this. हमने पहले दिया क्या? 1 प्रिंस ले लिया क्योंकि की क्या था? यूनिक था। एक वाला की उसमें नहीं था। दूसरा मैंने क्या डाला? 5 और प्रीति, तो 5 और प्रीति को डाल दिया। 5 और प्रीति नहीं है तो डाल दिया की है इसे। 5 की नहीं था ना पहले 1 की था, फिर मैंने 2 की डाल दिया, 2 रिकॉर्ड हो गया। जैसा ही 5वां फिर से मैंने की डाल दिया 5, तो क्या किया? जो इस की पे था 5 नंबर पे जो प्रीति था, 5 नंबर प्रीति था ना, 5 नंबर प्रीति, वहाँ पे इस वैल्यू को डाल दिया और प्रीति को गायब। प्रीति गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू किया। ओके, हमारा एक मैप है, यहाँ पे 1 एक मैप है हमारे पास, 1 और प्रिंस डाला। अंडरस्टूड? हमने डाला 5 और प्रिंस डाला, 5 प्रीति डाला। ठीक है, एक और वैल्यू आया क्या? 5 दीपक। प्रीति। तो कहता है कि मुझे डुप्लीकेट की दोगे तो मैं क्या करूँगा? सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डुप्लीकेट की स्टोर करता नहीं हूँ। तो ये क्या करेगा? ई जैसे ही वैल्यू आएगा ना, और इसको करेंगे पुट, तो जाएगा 5 की पे, और इसको करेगा रिमूव, और इसको कर देगा, डाल देगा किसको? दीपक को। क्या करेगा? दीपक को डाल देगा, उसी की के पर वैल्यू को डाल देगा किसको? दीपक को। तो क्या हो गया? 1 और 5 की रह गया, प्रिंस और दीपक रह गया, लेकिन 5 की पे जो पहल का था प्रीति, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया किससे? दीपक से। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे तो क्या कर दिया कि पहले 5 प्रीति डाला था, 5 की पे क्या डाला था? प्रीति डाला था। फिर से 5 की पे मैंने क्या डाल दिया? दीपक डाल दिया। तो की तो एक ही रहेगा ना, क्या कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो दीपक कहाँ चला गया? प्रीति को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया मतलब उसको हटा दिया, अपने डाल दिया। ठीक है, इसको बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? लूप चलना शुरू हुआ। ठीक है, ये हमारा मैप है। मैप में फर्स्ट वैल्यू डाला, की वैल्यू हम लिए जो कि 1 था, वैल्यू क्या था? प्रिंस था। दोनों वैल्यू लेकर के हमने क्या किया? मैप डॉट पुट कर दिया। तो की और वैल्यू 1 और प्रिंस क्या हो गया? मैप में चला गया ना इसमें। फिर से मैंने क्या किया? दूसरे बार जब लूप चलाई, आई प्लस प्लस हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 3, तो आई कितना हो गया? 2 हो गया। 2 के लिए जब चला तो इंट की फिर से लिए 5, स्ट्रिंग वैल्यू फिर से लिए, क्या हो गया? प्रीति, और उसको क्या कर दिए? पुट कर दिए मैप में। तो मैप में क्या हो गया? पुट हो गया। फिर से मैप में 5 और प्रीति है, फिर से हमने क्या किया? की को डाल दिया। तीसरे बार में जब चला तो की को क्या डाल दिया? 5, और वैल्यू क्या डाल दिया? दीपक। अब हुआ क्या? जैसे ही मैप डॉट पुट किया
तो देखा कि की तो ऑलरेडी 5 है इसके अंदर, मैप के अंदर, तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से डालूंगा थोड़ी ना, उसी की के ऊपर जो नेक्स्ट वैल्यू मिला था दीपक उसको डाल दिया, अंडरस्टूड, और उसको प्रिंट कर दिया। अगर तुम फिर से रन करती है इसको और अब की बार क्या देती हो, की एज ए 1 वैल्यू एज ए पी के, की एज ए 2 वैल्यू एज ए सी के, की एज ए 3 वैल्यू इज ए एम के, तो तीनों वैल्यू प्रिंट हो गया, क्योंकि की क्या है, यूनिक है। तो की के जगह पे की यूनिक ही रहेगा, हाँ, बट वैल्यू डुप्लीकेट हो डुप्लीकेट हो तो कोई बात नहीं, तब कोई इसको दिक्कत नहीं है। देखो करके बताते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया क्या 1, वैल्यू क्या डाल दिया पी के, की मैंने डाल दिया 2 और वैल्यू क्या डाल दिया पी के, वैल्यू सेम है, की मांगा फिर से हमने डाल दिया 1, फिर ओवरराइड हो जाएगा ना। हाँ ये ओवरराइड हो जाएगा, तो हम डाल देते हैं 5 और वैल्यू डालते हैं डी के। तो क्या किया 1 पी के 2 पी के 5 डी के, यानी कि वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब, की से, की शुड बी यूनिक। अगर की यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैप डज नॉट सपोर्ट की एज ए डुप्लीकेट, बट इफ यू गिव द डुप्लीकेट की देन एग्जिस्टिंग की वैल्यू विल रिमूव। सही है ना पॉइंट। यहाँ पे लिखते हैं इट सपोर्ट्स वैल्यू एज डुप्लीकेट बट की एज एंड यूनिक, नल है, बट की एज यूनिक, बट की एज ए यूनिक, यस लिख सकते हैं की एज यूनिक ओनली। ओके, so these are the very important points you have to know about it, about this map. Okay, okay, next, so we have created this map and we have inserted the value and we are able to see। अभी तक समझ में आया यहाँ तक। इसको बना सकती हो, कैसे वैल्यू लेना है, कैसे मैप में डालना है, मैप में डालने के बाद क्या करना है, कैसे प्रिंट करना है। लेकिन हमने अभी नहीं सीखा कि कैसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट अभी प्रिंट कर रहे हैं ना ऐसे, तो ऐसे मुझे प्रिंट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन करें, 1 बाय 1 करके। तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप चलाएंगे, कितना बार चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 चाहे 1, आई लेस देन मैप डॉट साइज कुछ है क्या ऐसा, मैप डॉट साइज है इसके पास जो मुझे साइज बता देगा, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैप डॉट साइज डाल लेते ना कि कितना वैल्यू अपना डालो। कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे अभी मैप का साइज क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, मैप का साइज 0 है। तो यहाँ पे मैप डॉट साइज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऊपर लिख देंगे ना, कौन वाला, ये लाइन, ए लाइन ऊपर लिख देंगे, हाँ ए लाइन ऊपर लिख देंगे, ये वाला ऊपर लिख देंगे तो साइज हम इधर से ले लेंगे ना। तो यूजर से लेंगे तब ना। हाँ अगर हम ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम वाला लिखना पड़ेगा कि इंटर द साइज ऑफ मैप, तब यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यस, 3 साइज तुम यूजर से लोगी तब यहाँ पे डालोगी साइज। यहाँ पे अभी मैप का साइज क्या है, एरे लिस्ट नहीं, एरे नहीं है। एरे लिस्ट में भी ऐसे नहीं होता, एरे लिस्ट जब बनाओगी तब क्या रहेगा उसका साइज 0। प्रिंट करके बता दें, एस आउट मैप डॉट साइज, मैप डॉट साइज, और यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ से हटा दो, देख लो
क्या आया साइज? हम्म, 0। अब बताओ तुम यहाँ पे अगर लिखोगी मैप डॉट साइज, लूप एक बार भी चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन वैल्यू जब डल गया तो पता चल गया कि साइज कितना है। एक वैल्यू डाला तो साइज कितना हो गया? 1। फिर लूप चला दूसरा बार तो दूसरा जब वैल्यू डाला तो साइज कितना हो गया? 2। फिर से लूप चला, साइज कितना हो गया? 3। अब 3 जब हो गया तो चौथा डलाया नहीं, बाहर निकले तो हम क्या है मैप डॉट साइज, तो बता देगा 3। लेट्स इट, इसलिए यहाँ पे हम लिखें साइज। अगर तुमको ये साइज जो है डायरेक्ट हम 3 ले लिए हैं, ये तुम यूजर से बोल सकती हो प्लीज़ इंटर द मैप साइज, साइज ले करके और यहाँ पे डाल दो साइज, तब सही है। नहीं तो डायरेक्ट तुम अगर डाल सकती हो तो डाल दो डायरेक्ट। 10 लेना है तो 10, 20 लेना है तो 20, 5 लेना है तो 5, 3 लेना है तो 3, लूप चला करके डाल दो फिर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे कि मैप में मैंने डाल दिया वैल्यू, अब क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। प्रिंट कैसे कर लेंगे? ऐसा तो मैप के पास देखते हैं कुछ तरीका है कि नहीं इसके पास। मैप डॉट गेट, गेट क्या बोल रहा है? गेट, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की। मुझे तो की मालूम ही नहीं है, मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू को? अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो बोलेगा की कहाँ से लाए? क्या है कि हमको केवल क्या मिला है? मैप। हमको क्या मिला है? मैप। इस मैप के अंदर डेटा है, मुझे की पता नहीं है उसके अंदर कौन कौन सा की है, तो ये काम नहीं करेगा। काम करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे फंस। क्या है कि हमको एक ही तरीका है मैप से वैल्यू को निकालने का, मैप डॉट क्या गेट, गेट ही लगाया था ना, और गेट में कितना है? ऑब्जेक्ट की। गेट, गेट ऑब्जेक्ट, गेट क्लास, गेट डिफॉल्ट, बस इतना ही है। उसके बाद दूसरा कुछ मेथड नहीं है। हम कैसे निकालेंगे वैल्यू को? नहीं निकाल सकते ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर ईच लूप का। कैसे? हम सबसे पहले उसका की निकालेंगे। की कैसे निकलता है? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है अभी? की। किसी मैप का की निकालना हो तो हमको लिखना पड़ेगा मैप डॉट की सेट। मैप डॉट की सेट करोगी तो वो हमें रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करोगे, यहाँ पे तुम्हारा कर्सर होना चाहिए। कर्सर कहाँ रहेगा? यहीं पे। सेमीकोलन के बाद। हाँ, सेमीकोलन के बाद, सेमीकोलन के बाद, और Ctrl+1 डालोगी तो वो साइन कर देगा वैल्यू को कहाँ करना है। तो तुम्हारा जो मैप के अंदर जो की है वो किस टाइप का है? सेट टाइप का है, इंटीजर है। सेट टाइप का इंटीजर है ना, जिसको बोलते हैं की सेट, और इसको बोल दो कीज। क्या है? कीज। तुम्हारे पास क्या आ गया? सेट ऑफ की आ गया। क्या आ गया तुम्हारे पास? सेट ऑफ की तो आ गया। अब क्या करोगे? की जब तुम्हारे पास आ गया तो तुम क्या करोगे? फॉर लूप लगा दो। फॉर लूप लगा करके वैल्यू निकाल लोगे। अब कैसे कर लोगे फॉर लूप निकाल करके? अब तुम्हारे पास फॉर ईच लूप तुम्हारे पास है ही, और इस सेट के अंदर क्या है तुम्हारे पास? इंटीजर। इंटीजर है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटीजर आई कलन कीज, क्योंकि सेट पे लगा रहे हैं ना। ये क्या है? एक सेट हो गया, कलेक्शन आ गया। फिर से मैप में से निकाले क्या? कलेक्शन। और इस कलेक्शन सेट है ना, सेट है। सेट समझती हो कि नहीं समझती हो? गेट मेथड, सेट मेथड। अरे नहीं, सेट मेथड वो नहीं, ये वाला सेट है अच्छा, सेट ये कलेक्शन जो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है की को। तो वहीं तो रिटर्न किया है यूनिक वैल्यू सेट में की।
मैप डॉट की सेट, मतलब मैप के अंदर जो भी की है मुझे दे दो, इस मेथड से आ जाएगा। ये जो आएगा उसको स्टोर कहाँ कर लिए, सेट के इंटरफेस में कर लिए, जो कि यूनिक स्टोर करता है। आया समझ में? और इस कीज को जिसे आप लिख दिए कीज, तो हम क्या करेंगे, इस की में कितने की हैं, बहुत सारे की हो सकते हैं, 10, 5, 15, 20 जो भी होंगे, जो भी हम यहाँ पे डाले होंगे। तो अभी फिलहाल कितना डाले हैं, 3 डाले हैं। तो यहाँ पे कितने की आ जाएंगे, 3 की आ जाएंगे, 1 2 3 मान लो, ये सभी स्टोर हो जाएंगे की में। अब फॉर ईच लूप लगा करके की में से हम क्या करेंगे, एक एक की निकालेंगे। फॉर लूप लगा कर क्या करेंगे, एक एक की निकालेंगे। कीज में क्या है, 1 2 3 4 है, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, और एक निकाल करके हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आउट, एस आउट, और हम क्या करेंगे की, तो आई को प्रिंट कर देंगे हम, प्लस डबल कोट, स्पेस देते हैं थोड़ा सा, फिर से क्या करते हैं, प्लस देते हैं, और की हमारा प्रिंट हो गया। अब वैल्यू प्रिंट करना है, तो वैल्यू कैसे आएगा, सिंपल, मैप डॉट गेट की, तो की हमारे पास क्या है, आई, की क्या है, आई। कुछ समझ में आया, नहीं आया समझ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या बनाया, हैश मैप बनाया। हैश मैप में हमने क्या डाल दिया, इंटीजर एज ए की एंड वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। हमने डाला 1 2 3 1 pk 2 ck 3 dk, तीनों वैल्यू हम लोग कैसे डाल दिया, लूप चला करके डाल दिए। ये चलाने आ गया, वैल्यू डालने आ गया, कैसे चल रहा है मालूम है, ठीक है, वैल्यू डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट वैल्यू निकालने का मैप से, की निकालने का डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करें, एक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है एक मेथड गेट डॉट गेट आई डी की, कि हमें की मालूम हो तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको तो की है ही नहीं, तो हम निकाले कैसे, तो हमने क्या किया, पहले की निकाला। मैंने क्या किया, कहाँ से निकाला, मैप से, मैप डॉट की सेट निकाला ना, ये निकाला। तो ये मुझे क्या दिया, सेट ऑफ, मतलब लिस्ट ऑफ कह सकती है चाहे सेट ऑफ कह सकती हो, की मुझे दे दिया। कहाँ स्टोर हो गया, इस कीज में, वेरिएबल है ना, स्टोर हो गया। इसमें से हमने क्या किया, एक एक की निकाला, फॉर ईच लूप लगा करके, कहाँ गया, आई में, आई की है यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और प्लस स्पेस दे करके मैप के अंदर गेट मेथड से की पास कर करके हमने वैल्यू को निकाल दिया। और रन करके देखो, मैंने आया प्रोग्राम को रन किया, बोला इंटर की, मैंने डाला 1, वैल्यू प्रिंस की 2 3, वैल्यू डाल दिया दीपक 3 चाहे 4, डाल दिया कितना, प्रीति। तो क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंस 3 दीपक 4 प्रीति, मतलब हम जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर दिया। अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें और समझ में, एक बार और समझा दें। ओके, सो इसमें हो क्या रहा है, सिंपल तरीके से अगर बताना चाहे तो, हमने पहले सोचा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो स्कैनर हमने यूज कर लिया। अब उसके साथ सोचा कि हम लोग जो वैल्यू लेंगे ना, उसको हैश मैप पे स्टोर करेंगे एज ए की वैल्यू पेयर। तो मैंने एक हैश मैप बना लिया। हैश मैप बनाने के बाद मुझे क्या किया कि चलो साइज मैंने प्रिंट करवा लिया कि उसका साइज क्या है, देखने के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हैश मैप जब क्रिएट करते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, 0 होता है। जब उसमें 1 by 1 वैल्यू डालते जाएंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि क्या है, ग्लोबल नेचर है इसका। ठीक है, ये जान गए हम लोग। तो हमने कहा कि चलो वैल्यू लेने के लिए हमने क्या करा कि एक फॉर लूप लगा देते हैं, क्या कि मुझे की और वैल्यू पेयर देना है। तो मैं पहले बोलूँगा यूजर से कि डालो पहले की, इंटर की, तो हमें दे देगा की। तो SC.next से हमने की लेकर के
की नाम के वेरिएबल अपना बना करके वो डाल देंगे। फिर से बोलेंगे इंटर योर वैल्यू, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा उसको लेकर के हम क्या करेंगे, वैल्यू में डाल देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, की भी हो गया, हमारे पास वैल्यू भी हो गया। अब मैप जो कि ए है, मैप, इसमें भी फिलहाल क्या है, जीरो। कुछ भी नहीं है, वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास की भी है, वैल्यू भी है, तो मैप डॉट पुट नाम के मेथड से हमने क्या किया, की और वैल्यू को पास कर दिया। ये दोनों की वैल्यू पास होकर के आकर के मैप में स्टोर हो गए। सेकेंड टाइम यहाँ से आया, फिर से चला आई प्लस प्लस, तो 2 हो गया, 2 लेस देन 3, फिर से आया, फिर से की लिया, वैल्यू लिया और फिर से डाल दिया, चला गया कहाँ पे, मैप में। तो साइज कितना हो गया, 2। फिर से क्या हुआ, फिर से लूप चला, 3 बार चलेगा ना, क्या कि क्या दिया, लूप में 3 दिया है, यहाँ पे जितना देंगे उतना बार चलता और वैल्यू लेकर के डालता। हो गया इसका काम, हमने वैल्यू डाल दिया सारे। वैल्यू डालने के बाद अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैप में कोई इजी तरीका नहीं है। जिसे तुमने देखी होगी गेट थी एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट में क्या था, गेट था, गेट बटन। और उसमें इंडेक्स भी था 0 1 2 3 4 5। इंटरनली एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक लूप लगा करके लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई लिख देते थे। तो 0 पोजीशन पे 1 पोजीशन 2 पोजीशन का वैल्यू क्या करता था, प्रिंट कर देता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, इसमें जो भी होता है की और वैल्यू होता है, इसमें तो इंटरनली इंडेक्स है नहीं। तो हम कैसे लगा लें कि आई इक्वल टू 0 और 1 2 3, नहीं होगा नहीं से। तो इसके पास एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, उस मैप के सभी की को निकालो। तो मैप डॉट की सेट करोगे तो क्या करेगा, मान लो इसको हम स्टोर कर देते हैं ट्री सेट में। क्या स्टोर कर देंगे, ट्री सेट में। तो ट्री सेट में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, सेट है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। और नहीं तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कास्ट टू ट्री सेट, तो काम हो जाएगा इससे। तो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस में हो गया, मतलब रिटर्न किया ट्री सेट, हम लोग सेट रिटर्न किया, लेकिन हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए उसको, ट्री सेट में कन्वर्ट कर दिए और स्टोर कर लिए ट्री सेट में। और नहीं तो इतना डिफिकल्ट तुमको नहीं समझना है, तो सिंपल रखो सेट, सेट में स्टोर कर लिए। सेटिंग इंटरफेस है ना, तो वो अपने पेरेंट के ऑब्जेक्ट को तो स्टोर कर सकता है ना, तो कर लिया। तो जो भी की थे मैप के, वो सभी कहाँ चले आए, कीज में चले आए, आ गए ना। 1 2 3 जो भी की दिए थे, वो केवल की निकाल के दे दिया। अब हमारे पास की है तो हम क्या कर सकते हैं, मैप डॉट गेट और की यहाँ पे पास कर देंगे तो निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि ओके, जितना की होगा उतना ही तो वैल्यू होगा ना। तो मैंने की के ऊपर क्या चल दिया, एक लूप लगा दिया, एक एक की को निकाला, उसके वैल्यू को प्रिंट करते गया करते गया करते गया। दैट्स इट। इतना चीज़ें तुमको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे रन करेंगे प्रोग्राम, अपना एक्सपेक्टेड काम करेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और मोर डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, बाय। हमारा कैमरा कहाँ हुआ चला गया है कोई पता नहीं है। यहाँ पे हमारा कैमरा मेरा इंतज़ार कर रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब आप क्या करो, बंद कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कैमरा को बंद करते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।